Hello everyone. My objective of making this video is to make your English literature journey more easy. While my preparing the NET exam journey, I found that literary criticism and theory becomes little tough for the student. Every Nothing is tough, I think, but the idea, if the subject is more cleared with a mind map, then it becomes easy. Here I am, here I am to make your journey more easy. That is the topic literary criticism and theory. Let's start, and from very basic we will start from the Greek literature, English literature to the modern era. Let's start. What is literature? First the question comes. Second, what is literary criticism? What is theory? According to Raymond Williams, the term literature is of recent origin. Originally, this term was used to refer to any printed document, no matter what the subject. First of all, हम लोग हमेशा जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम उसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके वर्ड ओरिजिन से जानना चाहें तो वो काफी आसान हो जाता है। जैसे इटाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, देन दिस लिटरेचर वर्ड हैज केम फ्रॉम द we include all the genres of imaginative writing in it, whether it is poetry, drama, novels or fictions. This is literature. Emergence of print industry, जब print industry आया, which has its root in the rise of notion of the literature as we have today. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब एक नया क्लास हमारे सामने आया सोसाइटी में, बॉर्गोइस और मिडिल क्लास. As middle class came into the picture, books became the commodity. Because commodity means here middle class started to read books a lot, because at that time industrialization came and it helped the middle class more by uh, giving relax in agriculture, by innovating more uh, factories, more mediums to make their work easier. At that time, women also started in the Victorian era to read the books. Then it is said that it was first agriculture and then came industrialization, which gave way to what we call leisure, which in turn made people to give time on literature, and finally developing and culture. So here is इस स्लाइड में हम लोग यह सीख रहे हैं कि लिटरेचर क्या है. लिटरेचर किसी भी तरह का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट. सेकंड, वी कम ऑन what is literary criticism. It means that whatever the written document is analyzed or evaluated is literary criticism. Criticism doesn't matter that to say bad thing about anything. Then we come, what is literary criticism? Literary criticism क्या है? एक ऐसा attempt to evaluate, आंकना एंड अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ एन ऑथर. ऑथर ने जो कुछ भी लिखा है, वो कोई भी लिटरेरी फॉर्म है, वो है क्या. जैसे जब हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि हाँ मूवी हमें कैसी लगी, मूवी में जो रोल था विलेन का कैसा था, एक्टर का कैसा था, मूवी एक सीक्वेंस में थी या नहीं, या फिर अचानक से द एक्टर इज shown that he is in his younger period and suddenly he can't show that he is in older period. So there is a sequence, so we analyze and we criticize according to our thought. That is criticism. तो जब हम किसी मूवी की क्रिटिसिज्म करते हैं तो वी कैन से दैट सिनेमा क्रिटिसिज्म, बट यहाँ जब मैं लिटरेरी फॉर्म की कुछ एवेल्युएशन कर रही हूँ तो उसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं. इसे साधारण शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं.
Here literature includes, हमारे लिटरेचर में प्लेज, एसेज, नॉवेल्स, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एनी लिटरेरी फॉर्म आते हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन है, एनालिसिस, evaluation or interpretation of a particular literary work or an author's writing as a whole. Usually it is expressed in the form of a critical essay. यह critical essay के फॉर्म में इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि इसे कंटेम्पलेशन और स्पेकुलेशन किया जाता है, मीन्स कि इसे बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज किया जाता है. Then the literary criticism term cleared. Now it comes what is theory. क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. हम लोग अब तक समझ चुके होंगे कि लिटरेरी वर्ड कहाँ से आया है. तो लिटरेरी वर्ड, लिटरेचर को ही यहाँ लिटरेरी बोला जा रहा है, जो कि हम बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एंड व्हाट इज थ्योरी? देन come to this slide. What is theory? It provides a system. Theory एक system है by which experience can be organized. Experience can be organized का मतलब कि जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले बुक से, पिछले एक्सपीरियंस से, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए एंड मेड सेंस ऑफ व्हाट कम्स टू अस, ताकि कि हमारे पास क्या आता है इसका एक निश्चित कोई फ्रेम हो. इट इज कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कैओस, मीन्स कि बहुत सारे चीज सोशल में है, लेकिन उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, एक फ्रेम में डाला गया, ये है थ्योरी. थ्योरी इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन. थ्योरी ग्रीक ओरिजिन का शब्द है. जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही हम लोग इटाइमोलॉजी पढ़ते हैं, इटाइमोलॉजी मतलब कि जब भी हम लोग को कुछ भी जानना हो तो अगर उस शब्द की ओरिजिन पे जाके पढ़ते हैं तो वो हमें आसानी से समझ में आती है. जैसे थ्योरी एक ग्रीक ओरिजिन शब्द है जिसका कि मतलब होता है, it is derived from the word contemplation and speculation. contemplation मतलब होता है चिंतन और speculation मतलब होता है to form opinions, विचार को बनाना. तो चिंतन करके विचार को बनाना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर और उसे एक फ्रेम देना ही थ्योरी है. अब हम लोग आते हैं, जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी इस बात की आती है कि समटाइम दे कंफ्यूज कि वेयर लॉन्गिनस कहाँ के हैं, होरेस, सेंट ऑगस्टाइन, वर्जिल, चाहे प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर हमारे जो इंडिया में है सिडनी, जो भी क्रिटिक्स हैं सारे कुछ मिक्स लगते हैं, मिले हुए लगते हैं. जिस कारण से मैंने जब प्रिपरेशन किया तो इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को इसको पढ़ना ज़्यादा आसान हो और एक क्लासिफाइड वे में पढ़ने से, माइंड मैप वे में पढ़ने से उसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमारा माइंड ज़्यादा क्लियर होता है. जैसे रोमन एज 31 BC टू 14 AD. हमारे इसमें जो राइटर्स हैं वो है लॉन्गिनस, होरेस की लिखी हुई आर्ट्स पोएटिका, सेंट ऑगस्टाइन, वर्जिल, ओविड, सिसरो, सेनेका. यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि पहले रोमन राइटर्स को क्लासिफाइड किया है और बाद में मैं इसको एक करके डिस्कस करूंगी. और जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें जानना होगा कि हमारे लिए जो ग्रीक राइटर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रेनेसा में ग्रीक से ही जो बहुत सारे चीज़ों को कॉपी किया गया, बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ा गया है. हमारे जो आगे के जो राइटर हैं, जॉन ड्राइडन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए, वो उन्होंने ग्रीक से लिया है. तो रेनेसा के समय में ग्रीक से बहुत सारे चीजों को लिया गया है, जिस वजह से हम लोग ग्रीक राइटर्स को और ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रीक राइटर्स के बारे में, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ग्रीक और वेस्टर्न थाउट्स, अर्ली रूट्स 800 BCE. होमर, इलियाड एंड ओडिसी नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन मैंने इसे क्लासिफाई किया ताकि समझने में काफी आसानी हो. हेसोइड, सफाओ, अल्सियस,
Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, father of comedy, Aesop, Socrates, Plato, Aristotle are the Greek writers. Then we come to the English writer. क्योंकि जो जब रेनेसा का पीरियड आया तो रेनेसा पीरियड में ग्रीक राइटर्स को हमारे जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने पढ़ा, और इसीलिए हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी है मोस्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। प्लेटो हमारे सुकरात के स्टूडेंट थे और प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल थे। तो मुझे लगता है कि यह अब समझना और आसान होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश राइटर्स जैसे लिटरेरी थ्योरी फ्रॉम द रेनेसा टू मॉडर्न एज। इसमें जो हर एज में जो जो क्रिटिक्स हैं वो सबको हम लोग एक एक करके मेनली ग्रीक राइटर्स और इंग्लिश राइटर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे जो इंग्लिश क्रिटिक्स हैं इनको मैंने कोशिश करी है लिटरेरी थ्योरी फ्रॉम द रेनेसा टू द मॉडर्न एज। रेनेसा एज, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज एंड देन मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज के बाद जो हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं और यहाँ तक इसमें जो भी क्रिटिक्स आए हैं वो सारे को मैंने एक एक करके आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप आई ट्राइड टू मेक द वीडियो मोर इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी नए स्टूडेंट या अभी नेट सी टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश में लिटरेचर की तैयारी करेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो स्टे ट्यून्ड एंड कम टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।